بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی۔ جنوبی پنجاب میں جون جوبن پر آگ برساتے سورج اور چلچلاتی دھوپ نے انسان تو کیا پرندے جانوروں کو بھی بے حال کر دیا۔ سرگودا میں پارا 47 کو چھو گیا، رحیم یار خان میں 46 جبکہ ڈی ڈی خان میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں جون جوبن پر سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ سرگودا میں پارا 47، رحیم یار خان 46 اور ڈی ڈی خان میں 45 ڈگری ہو گیا۔ بجلی غائب رہنا بھی معمول بن گیا۔ اس کو پانی پلا دیں، تھوڑا سا منہ میں ڈالیں تھوڑا سا پانی۔ ادھر لیا میں شدید گرمی سے اسکولوں میں 3 طالب علم بے ہوش ہو گئے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول 333 ٹی ڈی اے کی طالبہ نڈھال۔ گورنمنٹ ہائی اسکول 120 ٹی ڈی اے میں بھی طالب علم گرمی کے باعث بے ہوش ہو گئے۔ متاثرہ طالب علم کو اسپتال سے چیک اپ کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ ادھر برے والا کے گاؤں 251 ای بی کے سرکاری اسکول میں بھی گرمی کے باعث گورنمنٹ ہائی اسکول 251 ای بی میں طالب علم بے ہوش ہو گیا۔ شدید گرمی میں بچوں کو اسکول بھیجنے والے والدین پریشان۔ اتنی گرمی میں پڑھائی کیسے کریں؟ بچے بھی دہائی دینے لگے۔ گرمی میں بچوں کا ماسک پہن کر کلاس میں بیٹھنا مشکل، ایئر کولر فراہم کرنے کا مطالبہ۔ میپکو ریجن میں بجلی کی طلب بڑھنے لگی۔ میپکو سسٹم میں فالٹ کی شکایات۔ ترجمان میپکو حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ میپکو سسٹم زائد ڈیمانڈ کے باعث دباؤ کا شکار ہے۔ میپکو ریجن کو 250 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ میپکو ریجن میں بجلی کی طلب بڑھنے لگی ہے۔ میپکو سسٹم میں فالٹ کی شکایات بھی بڑھنے لگی ہیں۔ میپکو حکام کے مطابق میپکو سسٹم پر زائد ڈیمانڈ کے باعث دباؤ بڑھا ہے۔ گرمیوں ڈیمانڈ بڑھنے سے ٹرانسفارمر خرابی کی شکایات بڑھ گئی ہیں۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ میپکو ریجن میں بجلی کی طلب 3350 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی رسد 3200 میگا واٹ ہے۔ میپکو ریجن کو 250 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں گرمی کے دوران لوڈ شیڈنگ نے طلبہ کی مشکلات بڑھا دیں۔ اسکول آئے بچے لوڈ شیڈنگ کے باعث پریشان دکھائی دیے۔ بچے گراؤنڈ میں درخت کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں رپورٹ کریں گے آشری اشفاق۔ خان میں ایک جانب گرمی میں اضافہ ہونے لگا تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ لوڈ شیڈنگ ہونے کے باعث سکولز میں بچے پریشان دکھائی دیے۔ کلاس رومز میں بجلی نہ ہونے کے باعث بچے سکول کے باہر گراؤنڈ میں درخت کے نیچے بھی تعلیم حاصل کرتے دکھائی دیے۔ بہت پسینہ اور گرمی بھی بہت ہے اور یہاں پر ہمیں درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھنا پڑا ہے۔ کلاس رومز میں بیٹھے بچے بھی گرمی کے باعث پریشان تھے۔ بچوں کا کہنا تھا گرمی کی وجہ سے اچھی طرح پڑھائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی لیکچر سن سکتے ہیں۔ آنے میں جان میں مشکل ہوتی ہے، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، باہر جاتے اتنا مشکل ہوتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ایک تو کاٹ دیا پورے ڈی جی خان میں۔ یہاں پہ پانی نہیں ہوتا ٹھنڈے، یہ پانی بولتے بنے پڑتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم تنگ ہوتے ہیں۔ بچوں کا کہنا تھا لوڈ شیڈنگ کے باعث سکول میں پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ بڑھتی گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے سکولز کے بچوں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سکولز میں بجلی نہ ہونے کے باعث بچے باہر درختوں کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی ڈیرہ غازی خان۔ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ چور بیچارے بھی کیا کریں۔ ملتان کے علاقے بستی ملوک میں چوری کی انوکھی واردات ہوئی ہے۔ چوروں نے نقد رقم کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف گھی، چینی، چائے کی پتی اور بسکٹ لے گئے۔ امپورٹڈ شیمپو اور سگریٹوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا۔ چوروں کا سراغ تاحال نہیں مل سکا۔ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ بستی ملوک میں چوروں کی انوکھی واردات، نقدی کو چھوڑ کر چور بسکٹس، گھی، چینی اور صابن پر ٹوٹ پڑے۔ چوروں کی عجیب و غریب واردات نے دکاندار کو بھی صدمے سے دوچار کر دیا۔ شیمپو وغیرہ لے گئے ہیں، شیمپو امپورٹڈ سگریٹ نہیں تھی وہ لے گئے ہیں، موبائل فون لے گئے ہیں، لوڈ والے پڑے ہوئے تھے وہ لے کے گئے ہیں، یعنی کھانے پینے کی زیادہ چیزیں لے گئے ہیں۔ پیسے جو تھوڑے بہت تھے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ 2-4 ہزار روپے کی امانتن رکھوا کے گئے تھے ہمارے پاس، وہ لے گئے۔ چور امپورٹڈ شیمپو اور امپورٹڈ سگریٹس کے دل دادا نکلے۔ دکاندار محمد اسلم کا کہنا تھا تھانہ بستی ملوک پولیس ابھی تک چوروں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ کچھ لون لیا تھا، کچھ کسی دوست سے جنہیں پکڑ دکڑ کر کے اپنا تھوڑا بہت سرکل چلانے لگے ہوئے تھے۔ دکاندار محمد اسلم کا مزید کہنا تھا بینک سے لون لے کر سامان خریدا تھا، اب معلوم نہیں کیسے قرض اتار پاؤں گا۔ گھی، چینی اور صابن کی حفاظت کے لیے اب آپ رکھ لیں سیکیورٹی گارڈ، ورنہ اس چوری کی انوکھی واردات کے بعد آپ کو بھی محمد اسلم کی طرح سر پکڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔
करप्शन कहानी का जिक्र करते हैं। MWMC में फ्यूल और मशीनरी की मद में मुबैना 5 करोड़ रुपए के करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान ने गिरफ्तार 3 मुलजिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए मुचलके जमा करवाने का हुक्म। मुलजिमान में डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन बिलाल भुट्टा, सेक्टर इंचार्ज सजाद भुट्टा और साबिक DO शकूर शामिल हैं। जज आसिफ मजीद अवान ने गिरफ्तार डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन बिलाल भुट्टा, सेक्टर इंचार्ज सजाद भुट्टा, साबिक DO शकूर की जमानतें मंजूर करने का हुक्म दिया। मुलजिमान की जानिब से कौंसल जाफर तैयार बुखारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एंटी करप्शन ने मुलजिमान को शामिल तफ्तीश किए बगैर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि यकतरफा इंक्वायरी के जरिए गुनाहगार करार दिया गया। कुछ अर्सा कबल करप्शन साबित होने पर 15 मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। नाज़रीन, आपको पता है कि सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट से आगाही रखते हैं? चारों सूबों का संगम डेरा गाजी खान पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट भी है। जी हां, ज़राए का कहना है कि 1960 की दहाई में होने वाले जियोग्राफिक सर्वे में तो बाकायदा सेंट्रल पॉइंट का स्टोन भी नस्ब किया गया था। पुल डॉट भी दर हकीकत अंग्रेजों के सर्वे के मुताबिक सेंट्रल डॉट था। हमें रिपोर्ट करेंगे रजा मालिक। क्या आप पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा की दौड़ में कौन कौन से शहर शामिल थे? चारों सूबों का संगम डेरा गाजी खान पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट है। डेरा गाजी खान सेंट्रल पॉइंट होने के बावजूद दारुल खिलाफा क्यों ना बन सका? जियोलॉजिस्ट मोहम्मद बिलाल का कहना है कि डेरा गाजी खान ही मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब से पाकिस्तान का वस्ती मरकज है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ये डेटा है कि यहाँ पर ये जो बुर्जी है ये सेंट्रल पॉइंट है पाकिस्तान का जोग्राफियाई तौर पर। डेरा गाजी खान को ब्लॉक्स की सूरत में प्लान किया गया है। पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट के हवाले से मुतादिद सर्वे भी किए गए। इंजीनियर फैज मोहम्मद बुजार का कहना था कि नए शहर की बुनियाद तो 1910 में रखी गई थी। ये शहर टाउन प्लानिंग की महारत का नमूना है, जहाँ तमाम सड़कें और गलियां सीधी लाइन में हैं। शदीद गर्म होने की बिना पर डेरा गाजी खान दारुल खिलाफा की दौड़ से बाहर हुआ। जो हिस्ट्री बताती है, जो बुक से थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, वो ये बात है कि उसको रिजेक्ट करने की वजह बेसिकली एक तो उसका टेम्परेचर था, दूसरा सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पर जो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स हैं। इंजीनियर फैज मोहम्मद बुजदार का कहना था कि इलाके में जेर जमीन पानी कड़वा और सैलाब के खतरों के पेश नजर डेरा गाजी खान दारुल खिलाफा ना बन सका। क्या में पाकिस्तान के बाद अहम तनसीबात की तामीरात के हवाले से पाकिस्तान के सेंट्रल पॉइंट के तयन के लिए इकदाम किए गए थे। क्या है कि डेरा गाजी खान में पुल डॉट बुनियादी तौर पर सेंट्रल पॉइंट का डॉट है। LADG खान तो ये भी कहते हैं कि तमाम तर फासले जो हैं इस सेंट्रल पॉइंट से मापे जाते हैं और पाकिस्तान के तमाम डिस्टेंसेस जो हैं उनकी जो नुक्ता आगाज है वो ये पॉइंट है। इसी वजह से ही डेरा गाजी खान सेंट्रल पॉइंट है। कैमरामैन रिहान के हमरा रजा मालिक, डेरा गाजी खान। कोरोना की शिद्दत में कमी। NCOC ने भी आवाम खासतौर पर ताजरों को रिलीफ दे दिया है। हफ्ते को कारोबार बंद करने की पाबंदी खत्म। अब हफ्ते में 5 नहीं पूरे 6 दिन कारोबार होगा। सिर्फ इतवार या जुमा की छुट्टी होगी। कोरोना केसेस में कमी के बाद बड़े फैसले हो गए। मुल्क भर में लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। मुल्क भर में हफ्ते में 2 रोज काम काज की बंदिश की पाबंदी खत्म कर दी गई। अब एक दिन कारोबार बंद रहेंगे। दफातर में निस्फ हाजिरी की शर्त खत्म करके मुकम्मल हाजिरी की इजाजत दे दी गई। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने की पाबंदी भी उठा ली गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% की बजाय 70% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में फैसला हुआ कि गैर राब्ते वाले सिलेक्टेड खेलों की इजाजत होगी, जबकि कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग जैसे खेलों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इंडोर जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खुल सकेंगे। सकाफती तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि मजार और सिनेमाज बदस्तूर बंद रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन 30 जून तक कोरोना वैक्सीनेशन कराने के पाबंद होंगे। वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई के लिए बाज़ शोबों को खुसूसी मराद भी दी जाएंगी। वैक्सीनेशन मनाकिस हो जाएगी। अब हफ्ते में 5 नहीं 6 दिन कारोबार होगा। हफ्ते को कारोबार बंद करने की पाबंदी खत्म। सिर्फ इतवार या जुमा की छुट्टी होगी। मुल्तान के ताजिर हुकूमती फैसले पर खुश हैं। ताजिरों को हफ्ते में 6 रोज कारोबार जारी रखने की इजाजत दे दी। हफ्ते में सिर्फ 1 रोज लॉकडाउन रहेगा। मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान सदीकी ने फैसले को सराहा और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये एक अच्छा इकदाम है और इसे हम सराहते हैं, क्योंकि पिछले कई माह से
जुम्मा और हफ्ता यहाँ पर जनूबी पंजाब में पूरा बंद होता था, लाहौर में देख लें या इस्लामाबाद में देख लें तो यहाँ पर हफ्ता और इतवार बंद होता था। तो ये हफ्ते में 5 दिन बिजनेस होता था और फिर पहले 6 बजे का लॉकडाउन था, फिर 8 बजे का कर दिया गया। तो इससे ताजिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर इफ्तिखार शाह का कहना था कि हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम उठाया है। ताजिर कुछ अरसे से मुश्किलात से दो चार थे, लॉकडाउन में नरमी से ताजिरों को फायदा होगा। कि गवर्नमेंट का एक बहुत बेहतर इकदाम है, इससे ताजिर बरादरी को काम करने का मौका मिलेगा और वो क्योंकि पीछे कोविड की वजह से बहुत ही उन लोगों ने परेशानियां देखी हैं, तो ये एक छुट्टी मुनासिब रहेगी उनके लिए और उन्हें एक दिन मजीद मिल जाएगा वर्किंग के। लॉकडाउन में नरमी करने पर मुल्तान की ताजिर बिरादरी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और SOPs पर अमल जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। हफ्ते में 6 रोज कारोबार जारी रखने के फैसले को ताजिर बिरादरी ने खूब सराहा है। ताजिरों का ये कहना था कि हुकूमती बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा करेंगे और SOPs को जो यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। नाज़रीन, दुनिया मरीख पर कमन डालने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के शहर अहमदपुर शर्किया में एक गांव ऐसा भी है जहां बिजली तक नहीं है। अवामी नुमाइंदे हर बार मौजा लाड़ा आते हैं, वादे करते हैं और छू मंतर हो जाते हैं। इलाका मकीनों का बगैर बिजली शदीद गर्मी में बुरा हाल है। अरबाब इख्तियार से रहम की अपील। हजरत इंसान चांद पर पहुंच चुका और मरीख पर जाने की तैयारियां हैं, लेकिन बहावलपुर के इलाका हतेजी की बस्ती बोहड़ा ऐसी भी है जहां क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बिजली फराहम नहीं की गई। जदा पाकिस्तान से बढ़े ना तक इतना बिजली नहीं आई। बस्ती बोहड़ा के अवाम का कहना है कि वोट लेकर सियासतदान राबता नहीं करते, हमें सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। बिजली ना होने से बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हुए बेहाल हो जाते हैं। सियासी लोग हैं ना, वोट घंटे खालिद साहबा के तो आमिर को दितन वोट, आमिर साहबा के तो खालिद को ऐसा हूं चक्की पीस दे पीस। देहातों के लोग सियासतदानों के बारे में इतने साबिर शाकिर हैं कि बिजली ना होने के बावजूद जिंदगी का पहिया रवां दवां है। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक अहमदपुर के इलाका हतीजी में, मौजा लाड़ा, बस्ती बोहड़ा में लाइट का ना होना, बिजली का ना होना अफसोसनाक अमर है। यहाँ के बासियों ने वजीर आला उस्मान बुज़दार से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। सेहत सहूलियात की बात करेंगे। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल की वाहिद MRI मशीन का कूलिंग सिस्टम खराब है। मरीजों के लिए सस्ते टेस्ट कराने की सहूलत खत्म हो गई है। अस्पताल तर्जुमान ने कहा कि MRI मशीन 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। अस्पताल 3 सूबों पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करता है। मर्ज की तशखीस के लिए शेखजत अस्पताल के महदूद वसाइल में सिर्फ एक MRI मशीन है। शेखजत अस्पताल के मीडिया फोकल पर्सन डॉक्टर अलियास अहमद का कहना है कि MRI मशीन का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है। कंपनी ने नया कूलिंग सिस्टम मंगवा लिया है। मशीन 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। इसमें एक प्रोसेस है कूलिंग फैक्टर जो कि इसको ठंडा रखता है, वो सिस्टम खराब हुआ है, तो वो कंपनी ने ये सारा परचेज कर लिया है और इंशाल्लाह ताला ये विद इन वीक में ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा और वो कल आ रहे हैं वो लोग इंशाल्लाह ताला इसको सेट कर देंगे, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें इस फॉल्ट छोटे छोटे आते रहते हैं, ये भी एक छोटा सा फॉल्ट है। MRI मशीन खराब होने से मरीजों को मिलने वाले सस्ते टेस्ट की सहूलत खत्म हो गई है। अस्पताल में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज MRI करवाते हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। विफाकी इंजीनियर्स की तनख्वाहों में सूबाई इंजीनियर्स के बराबर इजाफा किया जाए, वरना पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देंगे। ऑल पाकिस्तान इंजीनियरिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का दबंग ऐलान। कहते हैं बजट में बेसिक तनख्वाहों में 1.5% इजाफा और बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। गोहर रहमान की रिपोर्ट। ट्रांसमिशन के इंजीनियर एसोसिएशन के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि पूरे मुल्क में NTDC के इंजीनियर सरापा एहतजाज हैं। वफाकी इंजीनियर को इस वक्त टेक्निकल अनाउंस नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स को यकसा तनख्वाह मिलनी चाहिए। रवां बजट में वफाकी इंजीनियर्स की बुनियादी तनख्वाहों में 1.5% इजाफा किया जाए। अभी जो है वो इंजीनियर्स जो है वो इस वक्त सड़कों पे निकले भी हुए हैं और आगे अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो आगे सड़कों पे मजीद आएंगे। जनरल सेक्रेटरी अपनिया का मजीद कहना था कि इस वक्त वफाकी इंजीनियर्स की तादाद 10,000 से जायद है। अगर हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाएगी। मैं बिजली बंद करूंगा। देखें मेरी बात सुने, इस वक्त जो बिजली है वो हमारे इंजीनियर्स के हाथ में है। हमारे साथ जो होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि अगर हमारा मुतालबात तस्लीम ना किए गए
तो हम बिजली बंद करेंगे। इंजीनियर एसोसिएशन के अहदेदारान का मजीद कहना था कि सूबाई इंजीनियर और वफाकी इंजीनियर की तनख्वाहों में 50,000 से 1 लाख रुपए का फर्क है। इस फर्क को खत्म किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। रहीम यार खान पुलिस का शहरियों की हिफाजत के लिए एक और कदम। खानपुर में भी अहम शाहराहों और चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पुलिस ने ताजिरों और सिविल सोसाइटी की मदद से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। रहीम यार खान के बाद खानपुर में भी सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत खानपुर की अहम शाहराहों चौराहों में 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में ताजिरों और सिविल सोसाइटी ने मदद की। डीपी असद सफाज का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जराइम की बेखुनी में मददगार साबित होता है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से किसी भी वारदात के बाद इसकी तफ्तीश में बड़ी मदद मिलती है। रहीम यार खान सिटी है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरास का जाल बिछाया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमने दीगर तहसीलों को इसको एक्सटेंड किया है और पहले मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्कल खानपुर जो है उसके अंदर अपना स्टेप इनिशिएट कर दिया है। इसमें तकरीबन 20 से ज़ायद कैमराज जो हैं पहले मरहले में हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। सीसीटीवी कैमरों को खानपुर और रहीम यार खान कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा और इनकी रिकॉर्डिंग को भी महफूज रखा जाएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फुटेजेस से मदद हासिल की जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से यंग डॉक्टर्स की मुलाकात हुई। डॉक्टर्स ने NLE इम्तिहान से मुतालिक आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टर्स का कहना था कि MBBS पास करने वालों से NLE इम्तिहान लेने का फैसला गैर मुनसिफाना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश करते हुए मामला सेनेट में उठाने की यकीन दहानी करा दी। MPA अली हैदर गिलानी ने निश्तर अस्पताल में PGR सीटों में कमी और डॉक्टर्स के सिक्योरिटी बिल से मुतालिक पंजाब असम्बली में आवाज उठाने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी, डॉक्टर राना अरशद, डॉक्टर सैयद फारूक अब्बास नकवी, डॉक्टर वसीम अख्तर और डॉक्टर जुनैद रियाज भी मौजूद थे। फलों का बादशाह किसे पसंद नहीं, लेकिन रहीम यार खान का आम जायके की वजह से मुल्क भर में मशहूर है, मगर आलमी मंडी तक रिसाई नहीं है। आमों को आलमी मंडी तक पहुंचाने के लिए रहीम यार खान चैम्बर ईवान सदर में 1 जुलाई को मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद कर रहा है। इफ्तिताह सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी करेंगे। अपने जायके और वैरायटी की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। पाकिस्तान की कुल पैदावार का 30% आम रहीम यार खान पैदा करता है, मगर आला क्वालिटी का आम आलमी मंडी तक पहुंच नहीं पाता। रहीम यार खान के आम और इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज को मुतारफ कराने के लिए रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ईवान सदर में 1 जुलाई को मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद कर रहा है। मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान करेंगे। सदर चैम्बर ख्वाजा बशीर अहमद का कहना था कि मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद रहीम यार खान से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हम प्रेसिडेंसी पाकिस्तान में मैंगो फेस्टिवल कराने जा रहे हैं। इसके लिए हमने अपने काफ़ी अरसे से रब्ता किया हुआ था, हमें बाकायदा इजाज़त मिल गई है। ये इनकाद 1 जुलाई को होने जा रहा है। इस सिलसिले में हमने कुछ स्पॉन्सर लिए हैं, वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। और असल में हमारा मकसद जो है ना, वो हमारा रहीम यार खान का जो आम ना, वो क्वालिटी में पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर है। अब हम चाहते हैं कि ये आम पूरी दुनिया तक पहुंचे। ईवान सदर में मुनक़द किए जाने वाले मैंगो फेस्टिवल में सफारतकारों, एक्सपोर्टर्स, बागबानों को भी मदऊ किया जा रहा है ताकि रहीम यार खान के आमों की आलमी मंडी तक रसाई मुमकिन हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में कॉटन प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अहवाल बताएंगे अली रियाज। में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कॉटन प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत तरबियाती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 50 से जायद बड़े काश्तकारों को कपास से मुतालिक आगाही फराहम की गई। उसमें बेसिकली ये है कि जो बेटर कॉटन प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक कॉटन को ग्रो करना है। तो उसमें जो मुल्तान में हमारा कंपोनेंट चल रहा है उसमें 3500 के करीब फार्मर हमने रजिस्टर्ड किए हैं और उनके जो लीड फार्मर हैं उनको हमने यहाँ मदऊ किया है। डॉक्टर फयाज का कहना था कि मुल्तान में 3500 काश्तकार रजिस्टर्ड हैं। वर्कशॉप में किसानों को फसल की इब्तदाई देखभाल से मुतालिक बताया गया। काश्तकारों का कहना था कि गुज़श्ता साल कोई खास इक़दाम न होने की वजह से फसल को नुकसान पहुँचा। और आज मैंने राना मुख्तियार के तवस्सुत से यहाँ पे CCR में आए हैं और यहाँ सेमिनार में कुछ सीखने का मौका मिला है। जो इन्होंने बताया है वो रिसर्च के बारे में जो कुछ हम जानते थे, कुछ इन्होंने बताया है, गाइड किया है, कुछ खाद के बारे में, कुछ पानी लगाने के बारे में और क्या कैसे बेहतरी हो सकती है कपास की। मगर जो हालात चल रहे हैं कपास के, वो थोड़ा सा हर जिम्मेदार परेशान है।
کاشتکاروں کا مزید کہنا تھا کہ وہ CCRI کے آگاہی اقدامات سے مطمئن ہے۔ کیمرمین عبدالرحمان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ناظرین، خواتین اپنے چہرے کو نکھارنے اور جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی جتن کرتی ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال بھی زمانہ قدیم سے کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سہیرا طارق کی یہ رپورٹ۔ ملتانی مٹی کا استعمال زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ خواتین اپنے چہرے کی جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال کرتی ہیں۔ موسم میں تبدیلی، فضائی آلودگی اور مضر صحت غذاؤں کے منفی اثرات سب سے پہلے چہرے پر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں چہرے پر دانے، ایکنی، کیل مہاسے اور ان کے سبب بدنما داغ، دھبے بننے لگتے ہیں۔ ان سب مسائل کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال کر کے نہایت آسانی اور کم خرچ میں چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جن کی سکن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، آئلی ہوتی ہے، تو وہ لوگ اگر ملتانی مٹی یوز کریں تو ان کو بڑی ٹھنڈک ملے گی سکن پہ۔ تو پرسنلی میں اپنی سکن پہ بھی یوز کرتی ہوں ملتانی مٹی۔ وہ بولتے ہیں نا کہ یہی لے آتی ہے جو سکن پہ نکھار، یہی تو ہے ملتانی مٹی کا کمال۔ بابا جی ملتان۔ ملتانی مٹی میں ارک گلاب، لیمو، شہد، دہی، ایلو ویرا اور دیگر اجزاء شامل کر کے چہرے پر لگانے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ گرمی اور تیز دھوپ کے اثرات سے بے جان ہوئی جلد ملتانی مٹی لگاتے ہی نکھر جاتی ہے۔ مختلف کاسمیٹکس کمپنیوں کے ملتانی مٹی سے تیار کردہ مڈ ماسک بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ یہ ملتانی مٹی ملتان کی بڑی خاص سوغات ہے اور اس میں اللہ پاک نے بڑی افادیت رکھی ہوئی ہے۔ یہ چہرے کی رنگت کو اور جو پھنسی دانے وغیرہ نکلتے ہیں اس کے لیے اس میں ارک اور اپنا اور چیزیں ملا کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بیوٹیشن کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ جلد کی چکناہٹ، خشکی، جھریاں اور کیل مہاسے دور بھگانے کے لیے ملتانی مٹی سے بہترین ماسک اور کوئی نہیں ہے۔ جلد کو خوبصورت اور تر و تازہ رکھنے کے لیے ملتانی مٹی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ہر قسم کی جلد کے لیے ملتانی مٹی بہترین قدرتی فیس ماسک ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔